ओम शांति। आज के बाबार 23/11/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष पॉइंट बाबा बोलছেন बच्चे তোমরা আত্মঅভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো, তাহলে তোমাদের সমস্ত শারীরিক মানসিক রোগ দূর হয়ে যাবে আর তোমরা ডবল সিরতাজ বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। তারপরে আজকে বাবা প্রশ্ন করছেন যে বাবার সামনে কোন বাচ্চাদের বসা উচিত। তখন বাবা বলছেন যে বাবার সামনে যারা জ্ঞানের চাত্রক বাচ্চা, যারা খুব সুন্দর জ্ঞান ডান্স করে তাদেরকেই বসানো উচিত। যারা বাবার সামনে বসে ঘুমাবে বা হাই তুলবে তাদের ঘুমের ভাইব্রেশনে পুরো ক্লাসে একটা অন্যরকম বাতাবরণ হয়ে যায়। তাদের পাশে যারা বসবে তারাও ঘুমাবে। এই জন্যে বাবার সামনে এরকম বাচ্চাদেরকে বসানো উচিত না। বাবা বিশেষ করে টিচার্সদেরকে, ব্রাহ্মণীদেরকে বলছেন যে এরকম বাচ্চাদেরকে ক্লাসে কেন আনো বাবার সামনে। তো বাবার সামনে ছাত্রক বাচ্চাদেরকে আনো যারা জ্ঞান ডান্স করবে, তখন বাবার মুরলিও খুব ভালো চলবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে বাবা কত দূর দেশ থেকে তোমাদেরকে পড়াতে আসছে। বিজ্ঞানের সাধনে তারা বড় বড় এরোপ্লেন বা রকেট বানাচ্ছে, যে অন্তরিক্ষ যান বানাচ্ছে, যে আমরা গিয়ে দেখব যে কত দূর পর্যন্ত এক একটা গ্রহ নক্ষত্র আছে। তো বাবা বলছে তাদের যদি পেট্রোল শেষ হয়ে যায় তাহলে তো তারা উপর থেকে আসতেই পারবে না, সেখানেই তারা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা আত্মা, তোমরা তো পরমধাম পর্যন্ত যাত্রা করছো, জার্নি করছো যোগের মাধ্যমে। আর যখন আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন সেকেন্ডের মধ্যে পরমধাম উড়ে যাবে। তো বাবা বলছেন যে মানুষ বলে যে এই পৃথিবীতে মনুষ্য 84 লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। 84 লক্ষ যোনিতে কেউ ভ্রমণ করতে পারে না। তাহলে তো ড্রামার আয়ুকে বাড়াতে হবে, 5000 বছরকে আরও বেশি বাড়াতে হবে। তো বলছে এটা অসম্ভব। তোমরা 5000 বছরের এই কালচক্রে মাত্র 84 বারই জন্মগ্রহণ করছো। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমাদেরকে প্রত্যেক কর্ম ত্রিকালদর্শী হয়ে করতে হবে। তো ব্যর্থকে একদম শেষ করো, ব্যর্থের খাতা সমাপ্ত করো। সঙ্গম যুগে একটা ব্যর্থ অনেক ঘাটতি নিয়ে আসে, আর একটা সমর্থ সংকল্প পদম গুণা ইনকাম করে। তো বাবা বলছেন যে ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রত্যেক কর্ম 3টে কালকে দেখে করো। তো এইভাবে বাবা অনেক কিছু আজকেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রহস্য বলেছেন আমাদেরকে পুরুষার্থে। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज बाबा बोलছেন মিঠে বাচ্চে তোমরা দেহি অভিমানী হও, তাহলে সমস্ত তোমাদের রোগ শোক দূর হয়ে যাবে আর তোমরা ডবল সিরতাজ বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। बाबा प्रश्न করছেন বাবার সামনে কোন বাচ্চাদের বসা উচিত। তো বাবা उत्तरे बोलছেন जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं। बाबार सामने बसे যদি কেউ এদিকে ওদিকে তাকায় তাহলে বাবা বুঝবে যে বাচ্চা কোনোটাই বুঝছে না, কিছুই বুঝছে না। तो बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने यह किसको लाया है। তখন বাবা ব্রাহ্মণীদের বলবেন যে তুমি কাকে এনেছো। तो जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं, बाबार सामने बसेও কারা যারা হাই তুলছে, তো বাবা বলবে তাদেরকে কেন এনেছো। तो बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। বলছে এত উঁচু বাবাকে পেয়ে তোমাদেরকে তো খুশিতে ডান্স করা উচিত। আজকের মুরলির গান হচ্ছে दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता व तुम मात पिता हम बालक तेरे,
फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, हम दुखी हैं। यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। मानुष तो भावे जे मानुष 84 लाख लक्ष जोनिते भ्रमण करे, किंतु बाबा बोलছেন যে 84 লক্ষ যোনিতে যায় না, मात्र 84 बार जन्म ग्रहण करे। तो एक एक जन्म कितने वर्ष का होता? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराए देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। तो बाप की महिमा अलग, 5 विकारों की कोई महिमा करते हैं क्या? बाबा बोलছেন যেখানে খারাপ আছে, যেখানে অবগুণ আছে, যেখানে বিকার আছে, তার তো মহিমা হয় না, রাবণের মহিমা হয় না, বা রাবণকে বাবা বলা যাবে না। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे। বলছে এত সৎসঙ্গ বাইরে দুনিয়ায় আছে, তো যারা যায় সেখানে তো কেউ এটা বুঝবে না যে ভগবান এসে আমাদেরকে রাজयोग শেখাচ্ছেন। राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। तो বলছে যেমন সার্জন আরেকটা স্টুডেন্টকে সার্জনই বানাবে, ব্যারিস্টার আরেকটা স্টুডেন্টকে ব্যারিস্টারই বানাবে, তো সেরকম রাজা মানে বাবা বিশ্বের মালিক, তো সে আমাদেরকে কি বানাবে? বিশ্বের মালিকই বানাবে। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? तो जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। तो बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं। बाबा বলছেন আমি দূর দেশ পরমধাম থেকে আসছি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে, এবং আমি কোনো লাইট বা রত্ন জড়িত তাজ পরি না, তোমাদেরকে আমি দিই। वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। तो बाप कहते हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। बाबा বলছেন যে সৃষ্টির তো উত্থান পতন আছে, তো আমি যদি একবার রাজা হই তাহলে আমাকে আবার কলিযুগে এসে শেষ ভিখারিও হতে হবে। তো না আমি কোনোদিন রাজা হই না আমি ভিখারি হই। তোমরাই একদিন রাজা ছিলে, আজ তোমরা একদম ফকির হয়ে গেছো। तो भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो, तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे।
जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं, तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोवर क्यों कहते हो? फॉलोवर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोवर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सद्गति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति रचनी चाहिए। बाबा बोलছেন যে যদি গুরু কাউকে বলছে যে তুমি ভগবানকে স্মরণ করো, তার মানে সে তো নিজে গুরু হলো না, তার মানে তার সে জানে যে আমার উপরেও একজন আছে। তো বাবা বলছে কোনো গুরুই কারো সদ্গতি করতে পারে না বা परम धामे रास्ता दिखाते पारे ना। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्मा कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। बाबा বলছেন তোমরা জানো যে সমস্ত আত্মার আসল বাড়ি হচ্ছে পরম ধাম, যেখান থেকে আত্মা এই সৃষ্টি নাট্যমঞ্চে আসছে তার পাঠ বাজাতে। वहाँ आत्माएं सुख दुख से न्यारी रहती हैं। बाबा বলছেন পরম ধামে आत्मा सुख दुख থেকে একদম আলাদা থাকে। तो यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियाँ हैं। कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर जा नहीं सकते। बाबा বলছেন যে অনেক অন্তরিক্ষ যানকে উপরে পাঠানো হয়, কিন্তু এত ইঞ্জিন দেয় না যে আবার ফিরে আসতে পারে, এই জন্য অনেকটাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। तो वह समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। বলছে তারা সমুদ্র বা আকাশ তত্ত্বের যদি एंड पॉइंट যদি ওরা खोजे तो पावे ना। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। तो बाप कहते तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। বলছে আত্মা দেহ রাখার পরে 1 সেকেন্ডের মধ্যে আরেকটা গর্ভে প্রবেশ হয়ে যায়। যদি কারো কর্মের হিসাব কিতাব লন্ডনে আছে तो सेकंडर मध्य से लंदन गए जन्म नेय। तो सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। तो बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे।
यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना। अभी पाठ बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती हैं। देश पर आए यह अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती। बाबा बोलছেন आत्मा यदि अपवित्र থাকে তাহলে সে परमधाम पर्यंत যেতে পারবে না। प्योर बनने बिगर वापिस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं है। बाप कहते मैं डबल सिरताज नहीं बनता, मैं आता ही हूँ एक बार पराए शरीर में पराए देश में। तो बाबा বলছে আমি সিরতাজ হচ্ছি না, তোমাদেরকে আমি বানাচ্ছি, কিন্তু আমি তো এই কলিযুগে আসছি, মায়ার রাজ্যে আমি আসছি, আর পরের শরীরে আমি এসে তোমাদেরকে ज्ञान দিচ্ছি। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लक्खीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बाबा बोलছেন যে 5000 বছরের মধ্যে কারো 84 লক্ষ জনি জন্ম হতে পারেই না, এটা একদম অসম্ভব। तो 84 लाख जन्मों के राज समझने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पंछी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्यों का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे। और से मानुषेर जन्म के दुर्लभ जन्म बोला है। पशु पाखीरा तो ये ज्ञान सुनबेও ना। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबर वार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। बाबा बोलছেন যে রাতের বেলা যখন তোমরা ঘুমাও তখনও বাবাকে याद করে ঘুমাও, আর এমন যেন অবস্থা হয়ে যায় যে আত্মা এই দেহকে ছেড়ে बाबार कोले चले गए थे। हम आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। বলছেন খুব ভালো করে যদি তোমরা যোগ লাগাও তাহলে অনুভব করবে যে আমি সূক্ষ্ম বতন পর্যন্ত চলে গেলাম, বাবার কাছে আমি ঘুরে আসলাম, কিন্তু পরমধাম যেতে পারবে না, কারণ
परमधामेर गेट एखोनो खोला होयनी। तभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। तो जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे नहीं। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। बाबूजी, साक्षात्कार द्वारा किछुई पावा जाए ना। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़े गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते। तुमको तो पढ़ना है। बाबा आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं। वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाबा बोलছেন असुर और देवताদের কোনোদিন যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু এখন যারা আসুরি সাম্রাজ্যে বিভিন্ন দেশ, রাশিয়া, আমেরিকা, এরা বম মিসাইল দ্বারা লড়াই করবে। তো বলছে এরা লড়াই করবে, এরা মরবে, আর সত্যযুগে রাজ্য তোমরা পাবে। তো তোমাদের জন্য এরা লড়ছে। तो बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियाँ इतनी क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं यह कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। तो बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया। मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है। रात्रि को सोते समय बाप को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। तो ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। बाबा বলছেন যে আমি যা আছি যেমন আছি আমাকে তোমাদের ছাড়া আর কেউ जानते पारे ना। तो अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते।
भारत का योग मशहूर है, वह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं, उठते बैठते बाप को ही याद करते होंगे। कहते हैं ना योग नहीं लगता, तो योग अक्षर उड़ा दो। बाबा यदि तुम्हारा बोलछो जे बाबा जोग लागे ना, तारे जोग अक्षर उड़िए दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना, तो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। बलছেন যখন তোমরা শতপ্রধান হয়ে যাবে তখন সব আত্মাদের মানে बारात जावे। तो जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, तो यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी। तो गल्प आछे ना जे शिवेर बारात जाच्छिलो, तो शिवेर बाराते सब पुरो दुनियार लोक जाच्छे, दुनियार सब साधु सन्यासी सबाई जाच्छे। तो बाबा बोलछे जे प्रत्येक आत्माई मशार मतन परमधाम चले जाबे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। एबार धारणार मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। राते शोवार आगे बाबा থেকে मिष्टि मिष्टि कथा बोलते हबे। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। बाबा आमी এই দেহটাকে এখানে রেখে বিছানার উপরে রেখে আমি তোমার কাছে আসছি, এভাবে বাবাকে याद করতে করতে ঘুমাতে হবে। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। 2 नंबर होच्छे 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। বলছে তোমাকে খুব খুশিতে থাকতে হবে, জ্ঞান ডান্স করতে হবে, আর ক্লাসের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব তৈরি করে বলছে সুস্তি ক্রিয়েট করো না, আলস্য ক্রিয়েট করো না। আজকের वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। বলছে त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थेर खाता समाप्त करे सफलता मूर्त होते हवे। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। तो सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित हो कर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा बोलছেন যে 1 সেকেন্ডের ব্যর্থ অনেক ক্ষতি করে দেয়, আর 1 সেকেন্ডের সমর্থ পদমের ইনকাম করিয়ে দেয়। তো বাবা বলছে ব্যর্থকে একদম শেষ করে দাও, নাহলে তোমাদের ইনকামে অনেক ঘাটতি পড়ে যাবে। তো যা কিছু কর্ম করছো সেটা त्रिकालदर्शी হয়ে করো, তো ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে। আজকের স্লোগান, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। বলছে মান শান আর সাধনের ত্যাগই হচ্ছে মহান ত্যাগ। ओम शांति।